Hello students, my name is Lohit Jindal and I am back with the first session of number theory. So far we have done some of the few chapters which come in NSEJS. So in this session we are going to start with number theory now. So there are many questions that have come in a number theory from in NSEJS. ठीक है, तो in today's session, we'll be seeing all such kind of questions which have come in NSEJS and which could come in NSEJS. Okay, so we'll be seeing some questions based on the similar concepts also, and some of the questions will be previous year NSEJS questions also. Okay, so students, I'll ask you guys to take a notebook alongside with you, okay, and a pen so that you are solving the questions alongside me. So before watching the video of me solving the question, I would say whenever I show the question, उसके बाद आप खुद solve करो पहले. Give it a try. Pause the video, give it a try, and then if you're not able to see, understand or do anything, तो आप आगे video को देखो, right? I hope you'll learn a lot through this video. Okay. So all right, let's start with our first question of the day. Okay. All right. So here's the first question, but students. So the number of positive integers n such that 1007 raised to power n plus 1009 raised to power n is divisible by 2016, right? तो इसमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे we can observe one thing that is very important in this thing to observe, that if I simply add these two numbers 1007 plus 1009, it results in 2016, है ना? So actually, the form of the question is of the form like this: a power n plus b power n type का format है, right? And we have to kind of say, we have to find such values of n for which this is divisible by, for which this expression is divisible by a plus b, isn't it? इस type का कुछ method बन गया, right? So बच्चों, I'll get your attention to this point that जो a power n plus b power n होता है, there's a factorization of this, right? So इसका एक factorization होता है ये, I'm writing that factorization, okay, minus a raised to power n minus 2 into b plus and so on till b raised to power n minus 1. So plus format, okay, it goes on like this. ठीक है, so ये factorization तो है, but there is a point to this factorization that a power n plus b power n can be factorized into this format जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, only when, or I would write for n belongs to odd integers, odd natural numbers, you can say odd natural numbers. तो ये उनके लिए true है, not for every number. Okay, so like I will give you an example, a square plus b square cannot be factorized, right? So even values के लिए वो factorize नहीं होता है. You can only factorize it in this format only for odd values of n, okay, odd natural numbers. So now my question becomes a bit easier. मुझे यही प्रूव करना था कि a power n plus b power n, here my a and b are 1007 and 1009, right? तो ये a plus b which is 2016 से कब divisible होगा? It will be divisible for the values when n is odd natural number, right? तो अपना question हो जाएगा वहां पे, right? So given in this question is that n is less than equal to 2016. So what are the values of n? N could take 1, 3, 5 till 2015. So all the odd values under 2016, right? Or you can say till 2016. So how many values are those? So number of values of n will be 2016 by 2, right? आधी values बन रही, that is 1008. So the answer to this question would be option A. ठीक है, तो it's an easy thing, nothing much to this, but हाँ, आपको जो notice करना था उसमें वो यही है, or you should know this thing actually, that a power n plus b power n can be factorized into this format, but there is a condition here which is very important, and that is that n, it is true for n belonging to odd natural numbers, not every time. So even numbers के लिए ये valid ही नहीं है, okay, that is very important to know. And if you know this thing, then this question is done very easily, ठीक है ना? I think nothing difficult to this otherwise. Okay, so all right, I hope this thing is clear then. Okay, so let's continue, let's move forward. अगला question देखते हैं, let's check the answer to this question also. Okay, right,
So the answer to this question is 1008 as we did, right? तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, you should also know a power n minus b power n factorization, and in that case actually वो वाला true होता है for all n belonging to natural numbers. Okay, all right, so I think we'll be making use of that theorem in this, or that factorization in this question. So बच्चों, this question is of NSE-JS 2015 and you will see how easy it is actually. ठीक है. So बच्चों यहाँ पे एक बात देखो, obviously this is of the form, जो ये form में लिखा हुआ है 41 power 16 and 14 power 16, it's of the form a power 16 or a power n minus b power 16, right? Or a b power n. Okay, so I'll tell you guys, a power n minus b power n का factorization होता क्या है, right? The factorization is a minus b into a power n minus 1 plus a power n minus 2 into b plus and so on till b power n minus 1. तो ये चलता जाता है, right? So that is the factorization and just like the previous one, ठीक है, इसमें यही difference होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन का डिफरेंस है in this portion, right? So this expression is always divisible by a minus b, ये हमें पता है, right? So you can remember this, that a power n minus b power n is always divisible by a minus b, ठीक है. So बच्चों यहाँ पे अगर आप एक बात देखोगे, one format could be 41 power 16 minus 14 power 16, so you can say this would be divisible by 41 minus 14, है ना? So that will be 27. So वो तो सही है, बट आवर ऑप्शंस आर नॉट सो स्मॉल, है ना, वो थोड़े बड़े हैं नंबर्स. सो इट्स नॉट दैट जो हमने किया वो गलत है, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट, बट इट्स नॉट दैट मच इन कॉन्टेक्स्ट विद द क्वेश्चन, है ना, जो पूछना चाह रहे हैं उसकी फॉर्म तक नहीं पहुंचे अभी हम. सो बच्चे यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हो, तो लेकिन अगर इनका स्क्वायर करके देखें तो उस नंबर्स की रेंज में पहुंच सकते हैं, राइट? सो ऑब्जर्व वन थिंग, इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 41 स्क्वायर की पावर 8 माइनस 14 स्क्वायर की पावर 8 लिख सकते हैं ऐसे. अभी भी आपका नया a क्या हो गया, दिस वुड बी a एंड दिस वुड बी b, है ना, अभी भी तो a पावर 8 माइनस b पावर 8 की फॉर्मेट में हो गया. तो अभी भी तो मैं ये बोल सकता हूँ, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 41 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, राइट? बोल सकता हूँ ऐसा, है ना. सो दिस इज द पॉइंट आई थिंक विल विल गेट अवर आंसर, बिकॉज 41 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर. अच्छा, इसको सिंपली कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ट्राई यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट, है ना. So it will be 41 plus 14 and 41 minus 14. तो 41 minus 14 हम देख चुके हैं, that is 27, and 41 plus 14 is 55, right? तो बच्चों एक बात तो यहाँ से देख सकते हो, B और D ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना, लास्ट डिजिट शुड बी 5 और वो तो नहीं है यहाँ पे, तो B और D आंसर तो नहीं लग रहे. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस, 27 into 55, so that would be 1350 plus 135. So 1350 plus 135 is 1485. So the correct answer to this question would be A, that this number is a multiple of this number. अगर वो उसका फैक्टर होगा तभी तो उसका मल्टीपल होगा, right? So that is the question. NSE-JS में आया हुआ है, अभी आप देख सकते हो. Although there are some shortcut ways also to do this question, है ना, because देखो 27 से डिविजिबल है ना, ठीक है, तो जो फैक्टर्स हैं जिसका वो मल्टीपल है उसमें भी तो 27 होना चाहिए ना, बिकॉज हम a माइनस बी करके देख रहे हैं. So you can divide these numbers, 4 numbers also by 27 and see which one actually gets divided, है ना, वो भी कर सकते हो, ठीक है. All right, so let's check the answer on the next slide. I hope you understand and do remember this factorization. Okay, in this case actually this is true for all n belongs to natural set. Okay, ये वाला उस सबके लिए है, लेकिन जो पिछले वाला हमने देखा था a power n plus b power n, that is true only for odd powers or odd values of n, odd natural numbers, ठीक है. All right, so that's our answer, A option, right? Okay बच्चों, let's see the next one. All right, so next question is of NSE-JS 2010. You can see that. चलो देखते हैं क्या मतलब है. Actually this is looking very easy. देखो, so you have two equations in A, B and C, 4A minus 18B plus 13C and 3A plus 3B minus 4C equal to 0. Then we have to find the ratio of A, B and C. देखो, इट्स वेरी मच ऑब्वियस, आप ये बोल सकते हो कि दो इक्वेशंस हैं लेकिन 3 वेरिएबल्स हैं. जनरली वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, है ना, बिकॉज फॉर 3 वेरिएबल्स आई वुड जनरली नीड 3 इक्वेशंस जनरली, ठीक है. स्पेशल केसेस में आंसर आ जाता है कई बार, बट इन दिस केस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट जनरली नहीं आता, राइट? तो मुझे तो ए रेशो बी रेशो सी ढूंढना है, राइट?
सो लेट्स डू वन थिंग, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय कैंसलिंग वन ऑफ द फैक्टर्स, है ना। लेट्स से इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूँ और इसके साथ ऐड करता हूँ, राइट। देखो, सो 4a minus 18b plus 13c equal to 0, that's the first equation. Second equation को multiply by 6 करके लिखते हैं, तो what would it be? 6 into 3 is 18a plus 18b minus 24c equal to 0, right? तो हम इसको ऐड कर देते हैं। We'll see here that 18b gets cancelled. अब क्या होगा? That's 22a minus 11c equal to 0. So you can cancel a factor of 11 also equation में से 2 पे कैंसिल हो जाएगा। So you are getting 2a equal to c. तो आपको a और c में एक रिलेशन मिल गया बहुत इजीली, राइट। सो एक काम करते हैं, c is equal to 2a. Let's try to write b also in terms of a, right? c को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं in this equation। किसी में भी कर सकते हो वैसे, तो let's do it in the second question। उसमें वेरिएबल्स थोड़े छोटे हैं, कोफिशिएंट्स थोड़े छोटे हैं, राइट। सो 3a plus 3b minus 4 times c का वैल्यू 2a, that is equal to 0. So now let's combine the a terms, ठीक है। 3b plus 3a minus 8a is 0. तो बच्चों आपको क्या मिला यहाँ पे? ये दो टर्म्स को उधर ले जाते हैं। So you get 3b equal to 8a minus 3a कितना हो गया? 5a. So 3b is equal to 5a. और बच्चों अब हमें क्या करना था? a, b और c का रेशियो फाइंड करना है। I think I have done the calculations correctly. ठीक है, तो बच्चों अगर हमें मुझे a रेशो b रेशो c लिखना है, so let's write it a as a, है ना। b का वैल्यू क्या निकला? 5a by 3. So b value is 5a by 3 and c value is 2a. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, that would create some problem, और a तो सेम ही है सब में, रेशो में हटा सकते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, राइट। So I can do that, 3 ratio 5 ratio 6. So that will be my answer, 3 ratio 5 ratio 6 according to us, right? C option will be the answer. तो हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड यू ट्राई टू कीप कि जो वेरिएबल का वैल्यू ढूंढ रहे हो, इन दिस केस लेट्स से हमने b कैंसिल किया था तो c का वैल्यू a की टर्म्स में आया, राइट। सो इट्स बेटर कि b या a को c की टर्म में लेके आओ या फिर b को भी a की टर्म्स में। सो यू ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स, है ना, a b और c में। सो व्हेन यू राइट a रेशो b रेशो c, तो कॉमन जो जिस वेरिएबल की टर्म्स में आपको लिखना है तो सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आओ टू फाइंड द रेशियो, राइट। सो दैट विल बी योर वे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। ऑलराइट, लेट्स चेक द आंसर। ओके, इसका एक शॉर्टकट वे जिसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सॉल्व कैसे करना है फ्रॉम द ऑप्शंस, दिस इज जस्ट अ ट्रिक नॉट अ प्रॉपर वे, ठीक है। टू सॉल्व द क्वेश्चन बच्चों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 6 5 रेशियो दिया ही हुआ है, सो यू कैन अज्यूम द नंबर्स टू बी 3 6 एंड 5, है ना, और पुट करके देख सकते हो दोनों इक्वेशंस को कौन सा पेयर सेटिस्फाई करता है। ऑल दैट वुड टेक स्मॉल बिट ऑफ टाइम, बट पेपर में अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा सॉल्व करने का, so you can try this method also to find the answer, right? So this is not the answer, answer is this. So options को put करके आप क्वेश्चन के अंदर भी चेक कर सकते हो, it will not take that long also, right? चलो, all right, let's see the answer. So yes, the answer is option C and this is the solution. So 3 ratio 5 ratio 6, right? Okay, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सब सॉल्व कर रहे हो साथ साथ में, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन NSCGS 2016 का है ये वाला क्वेश्चन। सो वी हैव ऑलरेडी सीन 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी एंड दिस इज द थर्ड वन। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स n लेस देन 30 लेस देन इक्वल टू 30 फॉर विच दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज अ प्राइम नंबर, है ना। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स n, इतनी कितनी n की वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका इट विल बी अ प्राइम नंबर, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, let's write this expression n plus root of n plus root of n plus it's going on till infinity. Let's say this is a prime number p, prime number होना चाहिए ना, ये p होना चाहिए। So let's do one thing, square it up. So it will be n plus under root of n plus under root of n plus under root of n plus so on equal to p square. But so what is the interesting thing about this, ये जो expression है आपका ये तो दोबारा p है ना, यहाँ पे p लिखा ही था, दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी, इट्स इनफाइनाइट टाइम्स, राइट, नेवर एंडिंग। सो अगर आपने स्क्वायर कर भी दिया, एक n हटा भी दिया तो भी इनफाइनाइट एंड्स है सेम फॉर्मेट में, ये भी p हो गया वापस से। सो यू गेट द एक्सप्रेशन एज n plus p is equal to p square, दैट इज an interesting thing, राइट। तो देखो क्या करेंगे, n is equal to p square minus p and you can write it as p times p minus 1, that is n। तो बच्चों ये आपका जो एक्सप्रेशन है ना,
ये आपको वैल्यू देगा, राइट? बिकॉज देखो आपको ऐसी n की वैल्यूज ढूंढनी है सो दैट योर एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू p, राइट? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू p. तो p तो प्राइम में वो आपको पता है क्या हो सकता है ना, एंड n की वैल्यूज 30 तक जा सकते हो. सो लेट्स मेक आइडिया. देखो n क्या होना चाहिए, p इंटू p माइनस 1 फॉर्मेट का होगा. तो प्राइम की वैल्यू डालते जाएंगे एंड विल सी व्हाट n वैल्यूज वी कैन सी, राइट? सो लेट्स सी, p को 1 डाल दें, p ओ सॉरी 2 से स्टार्ट करेंगे, p इज 2. तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू क्या होगी, if p is 2, n value is p into p minus 1, so 2 into 1, so n value will be 2. so मतलब क्या हुआ, अगर मैं n को 2 डालूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू प्राइम नंबर आएगा और वो कितना आ रहा है, 2 आएगा, राइट? ओके, व्हाट इफ p वैल्यू, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम, 3. p अगर प्राइम 3 हो गया तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 into 2 6. तो अगर इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं n को 6 डालूंगा तो p वैल्यू 3 आ जाएगी मुझे, आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एज 3. तो वो भी सही है. What next value of prime is 5. So for what value of n that I'll get, 5 into 4, right? p into p minus 1 n की value. So 5 into 4 that's 20. तो वो भी सही है. So that means अगर मैं n को 20 डालूंगा तो उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 5 आएगा. That is also fine. Now the next value of prime is 7, right? तो उसके लिए क्या आएगा n, 7 into 6 that is 42. Although it is fine, उसमें n को मैं 42 डाल के p7 आ जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं है. बट द प्रॉब्लम बीइंग दिस कंडीशन, n की वैल्यू 30 या उससे छोटी है. सो अब आप देख रहे हो, एज आई इंक्रीज p, n की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. सो आई शुड नॉट कंसिडर दिस केस, राइट? दिस केस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. तो कितने वैल्यूज हुए, सिंपल 3 वैल्यूज, n वैल्यूज कुड बी 2, 6 एंड 20. सो द आंसर शुड टू दिस क्वेश्चन शुड बी a, क्योंकि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछे जा रहे हैं, राइट? सो द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर 3, which are n equal to 2, n equal to 6 and n equal to 20, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आपके पास रूट ऑफ n प्लस रूट ऑफ n, that will be a prime number. Okay, so that is the way you solve this question. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को देखो आप किसी ट्रिक से नहीं कर सकते हो, राइट? you'll have to try it out in a proper manner only. that is why NSCGS इतना अच्छा एग्जाम है, वो आपके फंडामेंटल्स एंड लॉजिक चेक करता है. ट्रिक से आप एक दो क्वेश्चन कर सकते हो बट यू कैन एक्चुअली नॉट क्वालिफाई ओनली दैट, है ना? चलो, ऑल राइट. एंड एनीवेज अगर आपको लॉजिक्स आते हैं ना, आप ट्रिक्स तो अपने आप बना लोगे, देन यू आर एबल टू मेक योर ओन ट्रिक्स, ठीक है ना? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसे एग्जाम्स आप ट्रिक्स के सहारे नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो. ओके, यू हैव टू बी फंडामेंटली साउंड, ठीक है? ऑल राइट. तो बच्चों लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अनदर इंटरेस्टिंग वन. अगेन दैट्स NSCGS क्वेश्चन ऑफ 2016. ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको. व्हाट डज इट से? द नंबर्स, ओके, द नंबर 3 power 8 into 3 power 10 plus 6 power 5 plus 2 cube times 2 power 12 plus 6 power 7 is, okay, perfect square perfect cube. okay, पहले ऑप्शंस देख के ऐसे केस में आपको कॉन्टेक्स्ट का आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, राइट? सो मुझे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा इस केस में. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन अप दिस ब्रैकेट फर्स्ट. इसको ओपन करते हैं ध्यान से. देखो 6 को क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली, 6 पावर 5 इज 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 ना, अकॉर्डिंगली लिखना है. ऐसे ही 6 पावर 7 को 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 7 लिख सकते हैं, बिकॉज 6 इज मेड अप ऑफ 2 इंटू 3. ओके, सो लेट्स ओपन दिस अप. व्हाट आई विल गेट इज 3 पावर 18 प्लस, है ना, 3 पावर 8 इंटू 3 पावर 10 इज 3 पावर 18 प्लस, अभी आगे मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म में, तो क्या मल्टीप्लाई होगा? सो दैट्स 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 8 प्लस 5, 13, राइट? प्लस 2 पावर 15 जब 2 पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, एंड देन विद दिस, सो प्लस 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 7 इज 2 पावर 10 टाइम्स 3 पावर 7. तो ये एक्सप्रेशन देख के भी कुछ समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट, है ना, बट आई एम एबल टू यू नो फाइंड सम पॉइंट्स. देखो, फाइंड ऑब्जर्व ऑन सम थिंग्स. देखो ये वाला और ये टर्म उठाते हैं. 3 पावर 18 को लिख सकता हूँ 3 पावर 6 का क्यूब. कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3 पावर 6 का क्यूब, राइट? एंड 2 पावर 15 को 2 पावर 5 का क्यूब, है ना? अब आपके माइंड में यहाँ से क्या आएगा? देखो मुझे परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है, सो आई शुड बी एबल टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल क्यूब, है ना? तभी तो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा. एंड आई नो व्हाट इज a प्लस b होल क्यूब, एवरीबडी शुड नो दैट, ठीक है? अब a प्लस b होल क्यूब क्या होता है देखते हैं. व्हाट इज a प्लस b होल क्यूब? दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर.
ये फॉर्मेट होता है, राइट? एवरीबडी शुड नो दिस आइडेंटिटी ऑब्वियसली। तो बच्चों अब ये फॉर्मेट क्या ये बन रहा है, चेक करते हैं करके ना, बिकॉज अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो दिख रहा है मुझे। सो लेट्स सी इज द टर्म्स आर द अदर टू टर्म्स 3a² एंड 3ab², ठीक है ना? तो ये टर्म मुझे बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसमें 3 का पावर बड़ा लग रहा है। सो लेट्स राइट दिस टर्म नाउ इन द फॉर्मेट ऑफ दिस थिंग। देखो 3 अलग कर लिया एक, तो बचा 2 पावर 5, है ना? या फिर जो बचा 3 का पावर कितना बचेगा, 3 की पावर 13 में से एक निकाल लिया, 12 बचा। सो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 6 का स्क्वायर, राइट? क्योंकि मुझे 3 पावर 6 लिखा हुआ है, ए है 2, है ना? वो भी सही बन गया। एंड 2 पावर 5 इज द थर्ड सेकेंड टर्म, बी टर्म, है ना? तो ये सही बन रहा है। एंड नाउ सिमिलरली लेट्स ट्राई टू राइट दिस डाउन, प्लस इसमें से एक 3 अलग कर लिया, सो आई एम लेफ्ट विथ 2 पावर 5 या फिर 3 पावर 6 बचा उसके अलावा, राइट? देन 2 पावर 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 5 का स्क्वायर। सो ये तो इंटरेस्टिंग बन गया बच्चों, ये बन रहा है, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², तो ये बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है, आई विल बी एबल टू राइट दिस एज अ परफेक्ट क्यूब। देखो दैट विल बी 3 पावर 6 प्लस 2 पावर 5 का होल क्यूब, ये बन गया, राइट? इसका होल क्यूब अगर आप एक्सपैंड करोगे, गेट द रिक्वायर्ड टर्म्स जो लिखी हुई है आपके पास, राइट? सो बच्चे परफेक्ट क्यूब तो है ना? तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इट सेज इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये भी नहीं हो सकता। ये सी ऑप्शन भी कह रहा है नीदर अ परफेक्ट स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये भी नहीं हो सकता। सो आउट ऑफ ए एंड डी शुड बी योर आंसर, है ना? चलो लेट्स चेक फॉर दैट आल्सो। देखो ये नंबर कितना है अभी, होल क्यूब तो आ रहा है, व्हाट इज 3 पावर 6, दैट्स 729 प्लस 2 पावर 5 इज 32 रेज टू पावर 3। तो ये बच्चे बन रहा है 761 का क्यूब। तो बच्चों ये होल क्यूब तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? नाउ द सेकंड स्टेप इज टू चेक फॉर अ होल स्क्वायर। तो बच्चे क्यूब है, इसका मतलब जो उसके अंदर की क्वांटिटी है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा ओवरऑल। बट वी कैन सी दैट 761 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, इसके नियरेस्ट जो होगा, है ना? यू कैन सी दैट आई थिंक दैट वुड बी okay, you can see that 27 square, let's see, 27 square is, yes, 27 square is 729, simple, है ना? 27 square is 729, उसके बाद वाला स्क्वायर उसको एक्सीड कर जाएगा सीधा 28 का स्क्वायर। so 761 is not a perfect square, so the answer would be option D, right? perfect cube है but perfect square नहीं है, right? it's not a perfect square but it's a perfect cube, it's a perfect cube, right? so D ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऐसे केस में। अब देखो पेपर में आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं, तो आप कैलकुलेटर थोड़ी ना कर लोगे इसके नंबर को, है ना? सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट अदरवाइज। सो अगर ये आपको पता होगा कि इस तरह से करना है तभी कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बिकम बिट डिफिकल्ट। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज नो दिस आइडेंटिटी एंड यूज इट इन दिस क्वेश्चन, ऑब्जर्व दोज थिंग्स, राइट? ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। ओके, लेट्स चेक द आंसर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। All right, so D option is the answer, perfect cube but not a perfect square, right? So let's see the next one. So it's also a important one that you should know, ठीक है? तो important property है इसमें जो मैं आपको बताऊंगा अभी। So NSCGS 2018 का क्वेश्चन है ये, right? Okay, so let's try to understand what is this question, ठीक है? So the question says, what is the largest value of the positive integer k such that k divides this expression फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कि कोई भी n की वैल्यू हो जाए इसके अंदर डालें हम, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो उस k से डिवाइड होगा, राइट? ऑलराइट, तो बच्चे उसको करना कैसे, ट्राई टू फैक्टराइज फर्स्ट। देखो n स्क्वायर लिखा हुआ है, n स्क्वायर माइनस 1 कुड बी फैक्टराइज्ड एज n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, I think you can factorize that also by middle term splitting. It will be factorized as n minus 2 into n plus 1, right? So once you factorize this expression, है ना, let's say this is a cap number n, ठीक है, okay, p डाल देते हैं, p नंबर लिख देते हैं। so now p is a product of these such expressions, right? तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ बच्चों, देखो कैन आई राइट इट इन दिस वे, n minus 2 n minus 1 into n plus 1। देखो क्या क्या यूज कर लिया मैंने इसमें, by writing this thing I have used this, one of this and this, है ना? तो क्या बचा इसके अलावा मेरे पास,
एक फॉर्म तो ये बन गया एंड अदर फॉर्म लेफ्ट ओवर इज n into n+1, राइट। तो आप सोच रहे हो ऐसा सोचा ही क्यों? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। कि n की जब मैं वैल्यू डालूंगा इसके अंदर n-2, n-1, n and n+1, these are 4 consecutive numbers, consecutive है, राइट, एक के बाद एक। एंड सिमिलरली n into n+1 is also product of 2 consecutive numbers. सो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं विच इज वेरी यूजफुल, दैट ऑल ऑफ यू मस्ट नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NSCJS। ऐसी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सो बच्चों, द प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ एनी n consecutive numbers, if you are taking n consecutive numbers और उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, so those will be divided by n factorial. What is n factorial? You should know this. N factorial is 1 into 2 into 3 till n. Okay, that is the product of the first n natural numbers. Meaning, if we are applying in this question, what is this? These are 4 consecutive numbers, है ना? If these are 4 consecutive numbers, this expression should always be divisible by 4 factorial, right? उसका मैं आपको अलग से लॉजिक भी बता सकता हूँ. Why it should be divisible by 4 factorial? It means it should be divisible by 4, 3 and 2, right? देखो बच्चों, आप कोई भी 4 consecutive numbers अगर उठाओगे, है ना? What does it mean to be multiples of 4? Every multiple of 4 वो 4 के गैप के बाद आ रहा है, राइट? फर्स्ट इट्स 4, देन 8, देन 12, है ना? सो whatever 4 consecutive numbers you take, उसमें से एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा ही होगा ना. You think it in your mind. You pick up any 4 consecutive numbers, one of them is bound to be divisible by 4, क्योंकि कोई भी दो मल्टीपल्स अगर 4 के होते हैं, उसके बीच में 3 नंबर और होते हैं. There are 3 more numbers in between them, right? तो यहाँ पे अगर आपके पास 4 consecutive numbers हैं, उसमें से कोई एक तो होना ही पड़ेगा ना 4 से डिविजिबल, right? So the product will surely be divisible by 4. Similar logic से 3 से भी डिविजिबल होगा, because any 3 numbers you pick, ideally तो कोई भी 3 नंबर अगर आप उठाते हो consecutive, उसमें से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन आप तो 4 उठा रहे हो डिजिट्स, 4 नंबर्स उठाओगे, है ना? तो कोई भी 4 consecutive उठाओगे तो उसमें से एटलीस्ट एक तो 3 से भी डिविजिबल होगा ना. You pick up any 4 consecutive numbers, you will see one of them is divisible by 3. ठीक, और 4 नंबर है उसमें से 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा कोई ना कोई, rather 2 होंगे एटलीस्ट, there will be at least 2 numbers. तो एक तो उसमें से 4 का मल्टीपल ही होगा और दूसरे वाला 2 का मल्टीपल. So this product is divisible by 2, 3 and 4. So it's divisible by 2 into 3 into 4, right? तो 24 से divisible हो गया, right? And by the similar concept, this expression product of 2 will be divisible by 2 consecutive numbers will be divisible by 2 factorial, which is exactly 2. या फिर आप ये भी बोल सकते हो, कोई भी दो consecutive numbers अगर आपने लिए, one of them is bound to be even ना, odd even होते हैं सर, चलते हैं ना numbers तो numbering तो, so one of them will be even, so that will be divisible by 2. So overall देखो 4 factorial is how much? 24. ये वाला 2 से divisible है, ये 24 से divisible है. So the P expression should at least be divisible by 24 into 2, that's 48. So 48 से वो हमेशा divisible होना चाहिए, right? कुछ भी हो जाए for any value of k, n, right? That was our question. What is the largest value of the positive integer k such that k divides this particular expression for every natural number n? ठीक है ना? Obviously 0 हो जाएगा, अलग बात है. उसके अलावा जब आप 3 डालोगे, 4 डालोगे, तो that will be divisible by 48. So the answer to this question will be D. तो कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू n का डाल के देख लो, बल्कि आप, the number will be divisible by 48. ठीक है. अब इसमें शायद ही आप पेपर में कर पाओ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको किसी ट्रिक से करना. The trick would generally be putting some values of n. n की try to put 2 or 3 different values of n and see what is the GCD of these 3 numbers. है ना? More or most probably you will get some kind of answer, proper answer. ठीक है. So by that way also you can solve this question, but थोड़ा lengthy हो जाएगा. Rather than if you know this property, it is very easy. देखो 2-3 lines का question है ये, right? All right. So let's check the answer on the next slide. Yes. So the correct answer is D, right? You can check the solution. Okay. All right. So bachcho, that is all for today's session. I hope you enjoyed it and learned some new things, right? All of you can follow us on our social media channels so that you get up to date about every information about what batches we are launching and what courses we are going to launch. So you get updated on that, right? All right. So thank you guys. Thank you students. I hope you guys learned a lot, and we'll be back in the next week with the next session. Till then, okay, keep studying and keep rocking. Okay, bye bye. Thank you guys. Bye.